So nice to be with you all after so long. Hi, everyone. Well, the locked in period, I think, somewhere is giving us an opportunity to go deeper into oneself. And this is something so nice because I think, yeah, but then at the same time, one also believes that, what we feel is very nice is actually only for the privileged people, because we have a chance now to go inwards and open our locks which we have inside us while we are locked in from the outside. But I really feel that, the thousands of people who are on the roads and homeless, my heart goes out for them. And I am actually reminded of 1947 kafilas, when they moved around and there was no hope of, well, even if there was hope, there wasn't much of a chance of their arriving all intact to what they perceived as home across the borders. So I think somewhere it's a tragedy, and what we really see, face to face with us is we are actually confronting it. We are getting exposed as to what kind of divisions there are in the society. And however, I think we have to hope, we have to keep feeling good about the fact that at least, some things are happening to even resolve that issue. But I hope it is enough, and I hope that we are able to put together all our resources to take care of that reality. I am also waiting for Mangleshji, who would come with me here to address you all. And I think it's a wonderful idea to get connected virtually and make the best use of this technology, which otherwise is sometimes very overwhelming. I am not very adept at it, and yet I have had the courage to say yes to this because I think these are moments of learning. These are moments where we can share our thoughts and we can also really connect when it comes to our poetry. And poets are always starved of not just readers, but also, appreciators, people who can really appreciate, people who can get under the skin of what the poet is trying to do, what the words are trying to sort of communicate. It's always an effort, it's always a trial. There isn't any certainty of meaning anyway. And the unfortunate thing is that um, we are all the time, actually, all the time hoping for communication. The communication that really doesn't happen very easily with the world outside. And I'm trying to actually see how to connect with Mangleshji. And I think I've got him, Rest. And now he'll be there. And I'm adding him on. So welcome, Mangleshji. We have to talk. We have to communicate. I hope you appear on the screen fast. And there you are. I can see your desktop. And we are together, I'm sure. You have to appear on the screen now. So very happy to have you. Welcome, Mangleshji. Hello, Sakrita ji. How are you? Hello, how are you? We don't Yeah, see I'm you. good. I'm जी? wondering, I'm not able to see you. So maybe you Oh, are. I see, I see. Oh, अच्छा, now Oh I yeah, adjusted. now I can Okay, see जी, you. जी, जी, Yes, जी. yes. जी, I can also see you now. हाँ, तो नमस्कार जी, जी, बहुत अच्छा नमस्कार. लग रहा जी, है। जी, हाँ, जी. हाँ, हाँ, और बहुत खुशी हुई. बहुत अच्छा जी, ये लग रहा है कि देखिए ऐसे चांस मिल रहा है हम लोगों को कि आपस में बातचीत कर जाएं। तो वर्चुअल मतलब बातचीत तो हमारी फोन पे भी हो सकती है, जी, जी, जी. लेकिन जो नुएंसेस होते हैं, जो भाव होते हैं, जो पोइट्री के साथ जो कनेक्शन होता है, वो इस तरीके से मेरा ख्याल है ज़रा ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। जी, तो बिल्कुल. और एक अजीब सा सेंस ऑफ डूम जो चल रहा है कोरोना की वजह से, और जी, जो सारे एहतियात बरतने पड़ रहे हैं, जी, आई थिंक समवेयर वी आर लॉक्ड इन इवन विद दोज आइडियाज, वी फील जी, ऑलमोस्ट लाइक जी, कैप्टिव्स। तो जी, आपका, पहले तो हम चलिए इस बात पे ही थोड़ी सी तवज्जो देते हैं कि ये ऐसे माहौल में जब ये जी, सेंस ऑफ डूम हो इतना ज्यादा,
तो आपको क्या लगता है कि असल में देखिए पोइट्री कई का तरह क्या के, रोल है? जी, मुझे मुझे लगता है कई तरह की घेरेबंदी है कि हम्म। पहले ही कई तरह के हमारे यहाँ बंधन, सर्विलांस और कई हम्म। तरह की बंदिशें कम से हम्म। कम लिखने पढ़ने वाले लोगों पर थी। अब एक जी। और भी ये बंदिश है, ये एक विश्वव्यापी बंदिश है। हम्म। लेकिन मुझे लगता यह है कि अ, ये तो खैर लॉकडाउन तो मुझे लगता है सभी जगह दुनिया भर में हो रहा है। जी। शायद लॉकडाउन बेहतर तरीके से हो सकता था और हम्म। ये तो और लोगों को इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, लेकिन हम्म। बहरहाल लेकिन जो मुझे लगता है कि आज दुनिया में जो यथार्थ जो है जितना इंट्रिकेट और जितना फास्ट मूविंग हो गया है, मुझे हम्म। तो अपनी भाषा जो है बड़ी इसमें इनकेपेबल नज़र आ रही है कि जी। कैसे हाउ टू चेज दिस रियलिटी, हाउ टू रिकॉर्ड दिस रियलिटी जो कि इतनी एब्सर्ड हो गई है। और जी। मुझे और लगता है शब्द कि नहीं मिल समय, रहे। जी, मुझे पता है क्या मंगलेश जी, इसमें ये ख्याल आ रहा था, मैं अभी आज ही एक किताब जो पेंगुइन ने ट्रांसलेशंस में निकाली थी, आई कीप विजिल ऑफ रुद्र, ये शिव हाँ, प्रकाश के हैं ट्रांसलेशंस। तो मैं आई केम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन ऑफ चेन्ना बसवना की एक वचना का, और वो मैं पढ़ती हूँ अगर आपकी इजाजत हो या कन्नड़ तो। वचन, हाँ हाँ, मैं ये पढ़ना हाँ, मैं ये पढ़ना चाह रही हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें ये जो जी आप कह रहे हैं कि शब्द जो हैं वो जी मिल नहीं पा रहे। तो जी उन्होंने ये लिखा या कहा, कैन यू जी, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द डेप्थ्स विदाउट रोप, without the help of steps? Look all of you, the people building word steps to या lead us. हाँ These हाँ are the devotees of old, to remove the dirt from the heart of all those in the dying world. They lit the lamps of songs and utterances, devotees of Kudala Channa Sangha. अब ये जी। देखिए, कितनी बढ़िया बात है कि ये शब्दों के अल्लम साथ अल्लम, ही, जी जी, है ना? अल्लम प्रभु के वचन हैं, हाँ हाँ, जी जी, जी और कैसे बसवना, जो चन्ना बसवना, और ये जी जी कैसे देखिए, मतलब वर्ड्स के साथ भी वो कदम उठा के हम ऊपर चढ़ सकते हैं, और जी शायद जी जी कहीं जी ऐसे पहुंच जाएं जो कि जी जी। हमारे जो हार्ट्स हैं दे गेट लाइटेड अप। तो इसमें मैं मुझे, आपको जी जी इस बारे जी में मैं अब आपको एक कविता आपकी पढ़ता हूँ। जी बता, मेरे ख्याल शब्द और अर्थ जी को डील करती है। जी और इसका नाम है शब्दार्थ, ही इसका नाम है। जी तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। जी तो जी बिल्कुल। इरशाद शब्दार्थ, कहूँ क्या? मैं इरशाद जी कहती नहीं हूँ। नहीं नहीं, जी धन्यवाद। जी शब्दार्थ, जी जब भी कोई शब्द लिखता हूँ जी। लगता है उसमें वह अर्थ नहीं है जिसके लिए उसे लिखा गया था। वाह। एक कागज़ पर पेड़ लिखता हूँ तो यकीन नहीं होता कि उसे पेड़ ही समझा जाएगा। हम्म। वाह। भीतर घुमड़ती हुई एक चीख को आकार देना चाहता हूँ। शब्दकोशों की शरण में जाता हूँ, वाह। पर्यायवाची ढूंढता हूँ, लेकिन जो भी शब्द मिलता है उसमें उसके दृश्य का अंधेरा भरा हुआ होता है हम्म। या महज खाली आवरण होता है। वाह, क्या बात। हाँ। किसी को पुकारना चाहता हूँ तो उसके शब्द पहले ही राख की तरह गिरने लगते हैं। वाह वाह बार वाह। बार 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 दोहराता हूँ, यह वह शब्द नहीं है जो उसका अर्थ था, यह अर्थ वह नहीं है जो उसका शब्द था। हाँ। ज़्यादातर शब्दों को छोड़कर चले गए हैं उनके अर्थ किसी विपरीत दिशा में। हमारे समय के आतताई उन्हें कहीं दूसरी तरफ हाँक कर ले गए। क्रिया और कर्म के बीच उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी बस्तियां बसा लीं। वाह। कुछ ही शब्द हैं जिनके अर्थ बचे रह गए हैं। भय, अब और भी भय है, आतंक और ज़्यादा आतंक। प्रेम के भीतर प्रेम करते हुए लोग नहीं दिखते। हम्म। तकलीफ की इबारत की जगह एक क्रूर जश्न का इश्तिहार मिलता है। वाह। जब कोई जब कोई ताकतवर एक नई सुबह का जिक्र करता है तो मुमकिन है अंधेरा घिर रहा क्या हो बात। सकता है वह जो मनुष्य के तौर पर जाना जाता है लंबे समय से मनुष्य नहीं रह गया हो। हम्म। और जब
मैं साहस जुटाकर किसी अत्याचारी को अत्याचारी कहूँगा तो वह तो शायद वह नाराज न हो बल्कि अपनी प्रशंसा पर मुस्कुरा दे। एक दिन मैंने एक ताकतवर आदमी के सामने मनुष्यता का जिक्र किया तो उसने चिढ़कर कहा, तमाम लोग अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन सिर्फ आप हैं जो मनुष्यता मनुष्यता करते रहते हैं। वाह वाह, बहुत जी अच्छा। तो ऐसे ही एक जी, तो आप जी, हाँ अजीब जी सी छटपटाहट में एक बार मैंने भी लिखा, लेकिन छोटी सी जी कविता है, अंग्रेजी में जी, है ये। हाँ हाउ हाँ टू बिगिन जी दिस वे, दैट वे, हाउ टू बिगिन, it has to surface on this paper from the wilderness of the forest, its stinging nettles, knotted bushes, and tangled twigs. हाँ It has to emerge हाँ on this vacancy from the black holes of the universes, seen and unseen, through meteor storms and somersaulting planets. The hand has to appear with the finger pointing this way, that हाँ, way. वाह, तो छटपटाहट में ही है जब जी 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 शब्द जी, जो है वो दे ऑलमोस्ट फेल अस और वी फेल देम, हाँ हाँ वी हाँ, फेल आवर yeah, वर्ड्स। हाँ हाँ हाँ, yeah, we have failed. Yeah. The politics have failed the entire language. Yes, जी yes. जी, और ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि कहीं पर हमने लैंग्वेज को, ये जो आते हैं मौके आते हैं, हालांकि बहुत से जी सेक्रीफाइस हो जाती है ह्यूमैनिटी, जी लेकिन जी ये जी जी, इतना बड़ा चेंज जो होने जा रहा है जिंदगी का, तो जी उसके साथ मेरा ख्याल है हम बिल्कुल वी आर गोइंग टू बी शेकन अप, और जी इसके जी, अंदर से हाँ, एक नई क्रिएटिविटी की एक पूरी एक नदी बहेगी, और बहना शुरू हो रही है ऑलरेडी। लेकिन वो दुख ये hopefully. होता है, हाँ हाँ दुख ये हाँ होता है कि ये इतना हाँ सेक्रीफाइस हो रहा है ह्यूमैनिटी का साथ साथ। हाँ 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 हाँ, जी जी। हम्म, तो मैं आपको एक एक जो मुझे लगता है कि इस समय हमारा जो हमारी जी रियलिटी है, जो रियलिटीज़ हैं और जो जी कि बहुत ही पेरिलस हैं और टेरिबल हैं, और जी। जो कि और एक जो कहा जाता है एज ऑफ फॉरगेटिंग, हाँ, तो हम्म फॉरगेट, हम्म। सो एक एक कविता है भूलने का युग। भूलने याद का रख युग। युग, हाँ, जी। याद रखने पर हमला है और भूल जाने की छूट है। हम्म याद रखने पर हमला है और भूल जाने की छूट है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ नाम, अक्सर भूल जाता हूँ चेहरे। एक हम्म आदमी मिलता है बिना चेहरे का एक नाम, हम्म एक स्त्री मिलती है बिना नाम का एक चेहरा। कोई हम्म। पूछता है आपका नाम क्या है, उसे यकीन नहीं होता जब मैं भूला हुआ कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ। क्या बात। कुछ देर कुछ देर किसी के साथ बैठता हूँ तो याद नहीं आता उसका नाम, जो कभी एक परचम की तरह फहराता था उस पर। वाह। उसका चेहरा लगता है उसका चेहरा लगता है जैसे किसी अनजान जगह की निशानदेही हो। यह हम्म भूलने का युग है जैसा कि कहा जाता है। नौजवान भूलते हैं अपने माताओं पिताओं को, चले जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर, याद हम्म रखते हैं सिर्फ एक पता, एक नाम, जहाँ ज़्यादा तनख्वाहें हैं, ज़्यादा कारें, ज़्यादा जूते और ज़्यादा कपड़े हैं। हम्म हम्म बाजार कहता है याद मत करो, अपनी पिछली चीज़ों को भूल जाओ, पिछले घर को भूल जाओ, पीछे मुड़कर देखना भूल जाओ। जगह जगह खोले जा रहे हैं नए दफ्तर, याद रखने पर हमले की योजना बनाने के लिए। हमारे समय का एक दरिंदा कहता है मेरा दरिंदा होना भूल जाओ। बहुत अच्छा। जी ऐसे ही मुझे लगता है कि जैसे हम देखिए, अब एक और चक्कर हो गया है कि हम लोग जो सारे टहलते हैं सुबह और टहल नहीं पा रहे हैं, तो जी ऐसे एक बार पहले भी मौका आया था कि जब मैं ये ऐसे फंस गई थी किसी ऐसी जगह पर कि बाहर नहीं हाँ निकल पा रही थी। हाँ हाँ, उस वक्त मैंने ये कविता एक लिखी जिसका नाम है ड्रीम कैचर। तो मैं ओके, वो पढ़ना चाहूंगी ये। ज़रूर ज़रूर पढ़िए, हाँ। आई मस्ट रीच द फॉरेस्ट इन टाइम, आए, I must reach the forest in हाँ time,
before the break of dawn each day, to pick some dreams scattered in misty darkness. I must reach before the sun crackles, through the leaves of the trees on which dreams pile up, perching on the branches through the night. Dreams half dreamt, fully dreamt, and those yet to be dreamt, like babies born and unborn, crying out for attention, making weird faces in sleep. I pick what gets my fancy, bits from my wrinkled past, the shadowy fragments of future, mixing in twilight, droplets of dew ready to vanish with sunrise. Wow. Each day, each day I come home with a bag full of dreams that drip through the day for me and all. Each night I wait for the new dawn. तो चलिए, यही बहुत, है। ये तो बड़ी उम्मीद का नोट है। लेकिन सुकृता जी, ये जी, बताइए कि एक आपका इतना लंबा अनुभव है कविता लिखने का, जी, और कहते हैं कि आ, कवियों का जो लंबा अनुभव है वो, मतलब कवि जो है वो कभी कविता की जो भीतरी तहें हैं, कविता की दुनिया को जान जाता है। जी, और यहाँ तक कि आपकी कविता जो है वो, मैं तो मुझे लगता है कभी कभी, अक्सर मुझे लगता है मैं उसके ज़रिए आपके परसोना तक पहुँच सकता हूँ उस कविता के जी। ज़रिए। तो एक कवि के रूप में आप क्या सोचते हैं, कवि का काम क्या है इस समय, जी, जो मतलब जी, सपने देखने के अलावा, मतलब जी, जी, सपने तो खैर मुझे लगता है हुँ, मनुष्य को देखने कभी बंद नहीं करने चाहिए। जी, और बिल्कुल, कविता हमेशा स्वप्न देखती रहती है, जी, भाषा का स्वप्न है वो। जी, तो लेकिन आज कवि का क्या काम हाँ। है, क्या आपको लगता है कि एक मुझे लगता है आ, कि एक जो सच्चाई की खोज है, जो जी, जिसको सत्य की खोज कहेंगे, याद आ रहा है पूर्व ग्रह में मैंने निर्मल वर्मा की एक बार एक ऐसे पढ़ी थी, हाँ, जी, सत्य की खोज में, जी, और बहुत अच्छा लगा था। लेकिन वो जर्नी जो है, जी, क्रिएटिव राइटर को मेरा ख्याल है लगातार, कोई प्रिटेंशन के बिना ये जी, लगातार करना पड़ेगा कि सच्चाई हाँ, में कमिट करके, और टू टू हैव द एबिलिटी टू सिफ्ट बिटवीन ट्रूथ एंड द फ्रॉड, ट्रूथ एंड द लाइज। और अगर ये हम ट्रूली करेंगे तो शब्द भी कहीं पे फिर अपने आप हमारी तरफ आने लगते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आजकल हम प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है, क्लासरूम में सिखाया जाता है। मुझे लगता है वो प्योरिटी को जो है हमें, वी शुड हैव द राइट टू अब्यूज इट। और या वो राइट, अगर राइट, हम, हाँ, नथिंग इज प्योर, या नथिंग तो इज प्योर, अगर हम उसको अब्यूज हाँ, करते हैं तो अब्यूज करने का मतलब है खेलना, शब्दों के साथ जी, खेल पाना। तो उस जी, जी, लीला जी, में अगर हम मगन होके कमिटेड हों, अगर सत्य की तरफ जाएं, जी, एक्सप्लोर जी, करें, जी, और उसमें हाँ, ये हाँ, ना रहे, और ये बड़ी अहम बात है कि उसमें ये ना रहे कि हमें लगता हो कि यही सर्टेनिटी है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। जी, जी, क्योंकि जी, वो So, फ्लेक्सिबिलिटी जो है हाँ, हाँ, परसेप्शन हाँ, की, वो हाँ, लगातार रहनी चाहिए। हाँ, और हाँ, कविता हाँ, हमें वो देती है, कविता में वो हाँ, तो देन है हमारी। सो हाँ, आई हाँ, थिंक वी हैव हाँ, टू कीप दैट द जर्नी अलाइव। और हाँ, अगर हम हाँ, so, ऐसे हताश हाँ, होके बैठ जाएंगे, हाँ, उसमें हाँ, प्रॉब्लम हाँ. है। So it would be so nice if you can read one of your poems, one of your such poems um, that जी, deal with या uh, मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब ये पगोडा पोएम्स शायद आपने देखी भी होंगी ये मेरी, yeah, हाँ, हाँ, ये मैं जब गई थी, वियतनाम गई थी, तो पगोडा गए, तो एक अजीब सा सत्य सामने आने लगा। एक तो फिजिकल ब्यूटी जो सारी जगह की है, आर्किटेक्चर वगैरह वो तो है ही, जी, लेकिन उस जगह में कुछ ऐसी पावर थी कि सम बेसिक क्वेश्चंस भी मेरे अंदर आने लगे। जैसे कि एक छोटी सी कविता है, व्हाट इज रियल, image of the bird fluttering in the sky, or the one still stationary in the gushing river, the wavy moon in the water, or the one above that is steady, parallel, forever.
एक तो इस टाइप की एक फिलोसॉफिक स्ट्रेन की बात आ गई, yeah, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि मेरी कविताओं में खासतौर पे जब मैंने होमलेस लोगों के साथ काम किया था, yeah, तो जो एक सच्चाई और नजर आने लगी कि क्या ये जीवन में हम लोग कैसे प्रिविलेज क्लास वाले जो होते हैं, वो सो मेनी थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड, तो जी, उसमें से निकलने का ये एक प्रयास था और उस सच्चाई को ढूंढने की बात थी। और वो ये था, ये मैं पढ़ती हूँ, जी, said the rickshaw puller, the one with the gaping wound. हाँ, Said the rickshaw puller, the one with the gaping wound on his calf. No, 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 no need for the doctor. This happens so many times, Madam Ji, and Allah heals it very fast. With feline alacrity, my hand moved to cover my bandaged finger, marking my faithlessness. हाँ, तो हाँ, ये जो एक हाँ, सच्चाई बहुत उधर अच्छा, नजर आई ना, उसमें मुझे लगा हाँ, कि फिर मैं रोज जब उनके साथ काम कर रही थी, एक और पढ़ूंगी फिर आप पढ़िएगा कुछ। जी, जी, उसमें ये था कि एक बच्चा कह रहा है, जी, पढ़ा रहे हैं हम लोग उसको, और वो कहता हाँ, है कि मैं वो मुझे मिल जाए, बस मैं जल्दी से देख रही हूँ उसको। देखिए, देखिए, जी, हाँ, हाँ हाँ, वो कहता है, साहब जी, said the boy from Badaयूं, teach me to जी, write a teach me हाँ, to write a letter that my old ma can read. She never went to school, Sabji. And remember, Sabji, I won't learn to write what she cannot read. good, good, very good, beautiful, तो सो हाँ, ये मतलब कहीं हाँ, पे हाँ, लग रहा था उस वक्त, ये लग रहा था मैं बहुत अच्छा अच्छा करूं, जी, जी, शब्द जी, जी, इस्तेमाल हाँ, करूं, पर हाँ, ये छोटे हाँ, छोटे इंसाइट्स जो मिले, उसके हाँ, लिए आई एम ग्रेटफुल दैट आई वर्क विद द होमलेस हाँ, पीपल। हाँ। नहीं, मुझे ये अच्छा आपसे। लगा कि आपकी कविताओं में एक बड़ी होप और एक एश्योरेंस है, तो जो मुझे लगता है कभी कभी, so I am unfortunately I find myself unable to write an assuring poem or a poem full of hope, तो आई लेकिन थिंक मैं जहाँ आई थिंक ऑल मुझे पोइट्री इज अश्योरिंग, ऑल पोइट्री इज अश्योरिंग। या हाँ, राइट, हाँ, 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 सो मैं आपको एक सुनाइए। एक कविता सुनाता हूँ। जी इसमें मेरे ख्याल से what are the functions of a poem or that of a poet. So एक जी मुझे लगता है कि इसमें आ, आ, ये अंग्रेजी अनुवाद है और अनुवाद ट्रांसलेशन इज बाय one of my poet friends Sarabjit Garcha. So जी this is called जी Sorrow. Sorrow. जी I wear those words, the coachman in the Chekhov, Chekhov story, that जी the जी grief, या uh, या the Chekhov की कहानी जो है जिसमें जी जी वो जी कोचवान अपने घोड़े से अपना अपना दुख बताता है, उसका बेटा नहीं रहा, जी तो उसका एक रेफरेंस इसमें है। तो जी sorrow. I wear those words that the coachman in the Chekhov story had said to his horse. I am sorrow. Late at night, I come back slowly. I have memories of joy inside me. I am made of salt, of tears collected in kitchens. Leaving home and hearth, people wander aimlessly in a strange world. In exchange for food, they change their names and thoughts. I tail them. I tail them carrying a bundle on my head, clutch falling garments, preserve silence. जी I am a letter of contention bearing the signatures of those who are now no more. I treasure the incoming letters addressed to them. I am sorrow. I have a slow quivering light inside me. Shadows and eulogies pass through me. So too garlands of flowers, the sentences of sympathy in which hard times are mentioned and hope is expressed for the coming days. वाह, बहुत अच्छा। मैं मंगलेश से आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये बनता है कि मैं
हिंदी का जो अनुवाद किया रेखा सेठी ने, जी। मेरी एक पोएम है जिंगल ऑफ द म्यूट, तो ओके। वो वहाँ भी शायद कुछ रियश्योरेंस है कि नहीं, वो आप बताएंगे, लेकिन ये अच्छा। है, इट्स गूंगेपन का गीत। उसके बे आवाज गले की सुरंग से निकलते कौवे अजनबी हैं सूरज के इस देश में। कटोरा लिए वो लड़की झांकती है धूसर सन्नाटों के पार, उसके रहस्य छिपे हैं गूंगेपन की तहों में। मूरत सी वह भेद टटोलती उसकी आंखें, बांधे हैं कितने ही अधीर महासागर। शब्द मृत पैदा हुए शिशुओं से आवाज से रीते, मौन के खंजर घूमते हैं उस बेजुबान मुख में, उसके कटोरे में डाल दिए गए सिक्कों के साथ। बेजुबान उसके गले से निकले संदेश, अपनी चोंच में दबाए सफेद कबूतर उड़ते हैं बादलों के बीच सूरज के देश में। वाह वाह, हाँ बहुत अच्छा। ये अनुवाद है? ये अनुवाद है, अच्छा अच्छा, ये हाँ रेखा बहुत अच्छा सेठी ने अनुवाद है। अनुवाद नहीं, किया। मुझे लगता है विजुअली ये काफ़ी अच्छा अनुवाद है, रिच है। जी मुझे तो जी अनुवाद के बारे में, मैंने भी अनुवाद किए हैं थोड़ा बहुत, जो जी जो अपनी पसंद की कविताएं हैं। ये पिछले दिनों अरुंधति रॉय का जो नया उपन्यास है, द जी जी मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, उसका अनुवाद भी किया है। जी ज़्यादातर कविताओं की हैं अंग्रेजी से ही। आ, जी मुझे लगता है कि शायद एक चुनौती अनुवाद की ये है कि कैसे एक दूसरी भाषा जी। आपकी भाषा का हिस्सा बने, हम्म जो आप लैंग्वेज ऑफ अराइवल जो है वो हम्म उसका हिस्सा बन जाए। तो हम्म मतलब मसलन मैं अगर कोई अनुवाद करता हूँ तो वो हम्म, मेरी भाषा का हिस्सा बनना चाहिए उस अनुवाद को। तो जी आपका अनुवाद जो है उसमें भी ये है कि वो हिंदी का हिस्सा बन गया हो जैसे। जी। तो मुझे लगता है कि एक बात तो ये है, दूसरा मुझे लगता है भाषा को कैसे एक विजुअल में बदला। एक अनुवाद में अ, अगर अगर हम अनुवाद करते हैं, जी एक तो मुझे लगता है, कभी कभी लगता है कि अनुवाद भी जो है एक कवि की अपनी जर्नी का और अपनी क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। जी। तो इन दैट सेंस ही इज नॉट अ प्रोफेशनल, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर यस है। सो यस। वो एक अपने क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। जी अनुवाद को लेके कई तरह की लोगों का सोचना हाँ है, कई तरह की थेरीज हैं, कुछ जी स्कूल्स भी हैं। जी फॉर इंस्टेंस व्हेन द my great friend Arvind Krishna Mehrotra जी। translated my poems. So he यस told me that now you forget your poems, and, and the translation is the translator's domain. या So that is my domain. These poems no या longer belong to या you. So ये एक तो ये यस। नहीं, ये बात अहम है बहुत जो आप कह रहे हैं। हाँ, मुझे ये लगता है मंगलेश जी, जो आप कह रहे हैं, ये जो ट्रांसलेट करता है। हम्म हम्म हम्म, आपका। हेलो। हाँ जी जी। जी जी। तो भाई एक ट्रांसलेशन आपकी वो आवाज है जरा जो कि, क्लियर नहीं आ रही। हाँ, अब बेटर। अच्छा जी, एक ट्रांसलेशन वो है जो कि लॉयल टू द टेक्स्ट, है ना। सो मुझे लगता है कि बहुत जी हर लेखक का, हर कवि का ट्रांसलेट करने का अपना एक तरीका है। तो मुझे तो लगता है यही तरीका सबसे सही है कि टू रिमेन लॉयल टू रिमेन ये मंगलेश अटरली जी, आपको ऑनेस्ट भी टू दी। लगता होगा। हाँ, ये जी आपको भी लगता होगा कि एक ही जो बात चल पड़ी है कि जी। फिडेलिटी इज नॉट ब्यूटीफुल, मुझे तो उसको चैलेंज करने को मन कर रहा है, क्योंकि हाँ हाँ ये राइट। तो एक टाइट ओके। रोप, हाँ टाइट रोप वॉकिंग है ये, कि या आपको लॉयल भी रहना है और हाँ पोएम हाँ को अपनी अपनी ऑटोनॉमी भी चाहिए, हाँ हाँ। ऑटोनॉमी इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। जी तो वो जी जी ऑटोनॉमी तभी मिलती है जबकि जो जी पोएट है जी वो जी जी हाँ। क्रिएटिवली ट्रांसलेट करे, लेकिन हम्म। क्रिएटिवली करे। जी तो जी। ये शायद। क्रिएटिविटी जी, का बहुत हाथ है उसमें। मुझे लगता है
एटमॉस्फेयर उसका, cultural atmosphere, how to transfer that. You can transfer words, you can transfer language, you can even transfer diction. लेकिन वो जो एक उस भाषाई खुशबू है, आप तो आपने तो बहुत उर्दू शायरों को बहुत बहुत पढ़ा, मसलन गालिब का एक भी अनुवाद अच्छा नहीं हो पाया, सुरेश विद मीर है। तो उर्दू में जो अंदाजे बयां है उसको, जो कि मुझे लगता है कि उर्दू पर्शियन से बहुत जुड़ा हुआ है, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह की चुनौतियां ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं मालूम आपने इन चुनौतियों को फेस किया या नहीं किया, और फिर आपने कैसे रिजॉल्व किया। जी, मैंने ज्यादा वो नहीं किया, जाके कहते हैं ट्रांसलेट पोइट्री बल्कि उर्दू से नहीं की, इसी वजह से शायद नहीं की। लेकिन फिक्शन का में मैंने काफी ट्रांसलेशन की। लेकिन फिक्शन में भी ये बहुत दिक्कत आई। आपने पॉल साहब को ट्रांसलेट किया ना, पॉल साहब को ट्रांसलेट किया आपने? जी बहुत किया। और मुझे उनकी भी जो, हालांकि वो अपने घर में हर वक्त होते थे, समझ आती थी क्या कह रहे हैं उर्दू में, लेकिन जो भाव है, जो टोन है, जो अकल्चरेशन जो जिसकी मुझे जरूरत थी, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा। और तब जाके वो स्टाइल, वोकैबुलरी, स्पिरिट और टोन और सार्केज्म, ये सब चीजों को कैसे ओन करना, जैसे कि अपना हो जाता है, और क्रिएटिवली फिर क्रेजी में उसको डालना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है हमें और जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है हमारे खासतौर पे इंडिया में। और आपने तो लोरका को भी किया ट्रांसलेट रिसेंटली। मैंने कुछ किया है लोरका को, उनकी तो कुछ कविताएं की हैं जरूर। मैंने नेरुदा को किया है, बर्टोल्ट ब्रेख्ट को किया है, और ग्रीस के बड़े कवि हुए हैं यानिस लिथसोस और एर्नेस्टो कार्डिनाल, जिनका हाल ही में डेथ हुई है निकारागुआ के। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द लास्ट पोएट्स। तो इनके अनुवाद किए हैं। और मैं यही देख रही थी, देखिए जैसे वचना से हमने शुरू किया था, अगर वापस उस पे आते हैं तो आप देखिए कि वचना को भी रामानुजन ने किया, और वो बिल्कुल अलग है। शिव प्रकाश ने किया तो बिल्कुल अलग है। और उसके बाद एक वो कन्नड़ यूनिवर्सिटी से भी एक अनुवाद छपे, तो इसका मतलब तो ये साफ होता है कि अनुवादक जो है, जो कर रहा है ट्रांसलेट, उसकी भी काफी पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर जाता है। देखिए, ये कहा जाता है कविता के जितने अधिक अनुवाद होते हैं, जितनी बार अनुवाद होते हैं, उतनी बार उसका जन्म होता है। तो रीबर्थ है एक तरह से कविता का। तो अगर किसी कविता के 10 अनुवाद हैं तो 10 उसके रीबर्थ्स होते हैं। तो एक तरह से वो ऐसे करते हैं। जी, आपका एक अनुवाद जो है लोरका का, कुछ भी एक छोटा सा पीस आप कर दीजिए, और फिर उसके साथ हम अंत करते हैं। मैं आपको बहुत छोटी कविता सुनाता हूँ। एक मिनट। इरशाद जी। ओके, एर्नेस्टो कार्डिनाल निकारागुआ के क्रांतिकारी कवि, पादरी, मार्क्सिस्ट पादरी और एक्टिविस्ट थे, जिनका 95 इयर्स की उम्र में अभी डेथ हुई है। वो वहाँ जो लैटिन अमेरिका में लिबरेशन थियोलॉजी है, उसके वो बहुत बड़े एडवोकेट थे। अच्छा। और मेरे ख्याल से he was one of the last living poets. So मैंने उनकी कविताएं की थी, बहुत सी कविताएं अनुवाद की थी। And I had the honor of meeting him when he was in Delhi some years ago. So उनकी एक कविता है छोटी सी, मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं, और ये अनुवाद को तो हम कहेंगे, जैसे आपने भी किया होगा, एक कविता को नया जन्म मिल जाता है। और कई लोग कहते हैं कि कविता बिट्रे हो जाती है उसमें, तो ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। जी, हाँ, ये भी है।
देखिए मैं आपको उसको रीइंकार्नेशन भी कह देते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। एक मिनट है, मैं आपको हाँ, बताइए। और हमारे वो गूगी वाथियों को, उनको ट्रांसलेशन को वो कॉन्वर्सेशन कहते हैं। जी मुझे जी, लगता अच्छा। है वो, हाँ हाँ, वो कहते हैं कि या इट इज हाँ हाँ हाँ, और मुझे तो अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा की जो कलेक्टेड पोएम्स आई हैं अभी, उससे गुड। अरविंद ने अनुवाद भी दिए हैं उसने। अनुवाद एक एक कवि की, एक कवि क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। तो जी, आ, है ही बिल्कुल। मैं इसको एक मिनट, हाँ मुझे लगता है कि हाँ हाँ, मैं नहीं नहीं, इसको आप उसको ढूंढ नहीं पा ढूंढिए रहा। लेकिन हाँ। तो जस्ट अ मिनट है। विनीता एंड मेलविन, प्लीज एक्सक्यूज अस, हम करेंगे, हमारा मन बहुत लग गया है और अच्छा भी है, और बस एक कविता और सुनेंगे और फिर हम वी आर गिविंग टाइम टू जी यू, हाँ, जी हाँ, एक मिनट विल है हैंड इट जस्ट। ओवर। हाँ जी। जी, ये कविता जो है, दिस इज अ पोएम रिटन अगेंस्ट निकारागुआन डिक्टेटर सोमोजा। लव्ड तो इट। ये है, अभी छप नहीं सकती हमारी कविताएं, हम्म वे हाथों हाथ घूमती हैं, हाथ हम्म से लिखी हुई या हम्म, साइकिल स्टाइल की हुई। वाह। लेकिन एक दिन लोग भूल जाएंगे उस तानाशाह को हम्म जिसके खिलाफ ये कविताएं लिखी गई थी, और हम्म कविताएं पढ़ी जाती रहेंगी। वाह। उस तानाशाह को लोग भूल जाएंगे जिसके विरुद्ध ये लिखी गई थी, हम्म लेकिन कविताएं पढ़ी जाती रहेंगी। पढ़ी जाती रहेंगी, वाह। शायद ये कविता की, मुझे लगता कविता की स्ट्रेंथ भी शायद यही है बहुत कि वो अच्छा। हाँ उस इमीडिएट रियलिटी जिसके बारे में वो लिखी गई है, हाँ, उसको भी वो जो क्रॉस कर जाती है, उसको बिल्कुल। उसके उस पार चली जाती है। जी और यही एक प्रेशर, जो एक तो ये तो बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जी। वो तो लोग नहीं रहेंगे लेकिन कविता तो रहेगी। हाँ तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, जी जी इमोर्टैलिटी जी है। एक बात जी हम जल्दी से बस वो खत्म करते हैं। एक बात मैं जी कहना चाहती हूँ कि जैसा माहौल बन रहा है, और जैसे एग्जिस्टेंशलिस्ट कहते थे लेकिन हम लोग ज्यादा पॉजिटिव हैं उस बारे में, कि जब डेथ का एक जैसे डूम, सेंस ऑफ डूम जैसे घूम रहा होता है अपने ऊपर, तो जैसे हम्म, आजकल भी कुछ सेंस ऑफ डूम का ही है माहौल। तो मुझे हम्म, 30 बरस भी नहीं होंगे, 30 बरस का भी नहीं होगा, ये पोएट, यंग पोएट, वेरी वेरी यंग पोएट, उसने हम्म, कैंसर से जूझ रहा था। तो जी उसने ये, व्हेन ही वाज वेरी क्लोज टू डेथ, तो उसने टाइम के बारे में छोटा सा लिखा था, और हाँ मैंने हाँ। उसकी ना पूरी किताब एक छपवा दी अभी रिसेंटली। ओके, सैफ अच्छा, उसका क्या नाम नाम है? है। हाँ? सैफ, सैफ। तो अच्छा। हाँ, और ये कीनिया के थे, और हाँ लंदन में इनकी डेथ हुई कैंसर के साथ, हाँ 20 हाँ हाँ, साल हो गए। हम्म, तो इनकी छोटी सी मैं ये पढ़ती हूँ कि टाइम का जी क्या होता है। जी। इज टाइम द टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, और हाँ हाँ, इज टाइम द ticking of a clock, or या is it the measure of change, हम्म, each shadow changing places with another, हाँ while the world turns slowly on its own, on हाँ its hands? What happened to now? Where is yesterday? Was it हाँ you that I met as I हाँ was passing this way? Where was I going? Why did I stop? Was it your smile, or did the sun dazzle my eyes? What is it that made this time? And how am I passing through it? Or is हाँ that passing through me? I know not. हाँ, इससे ही मुझे so लगता है moving, it's so moving, वेरी मूविंग। और इसके हाँ, चार चार दिन बाद इनकी डेथ हो गई थी। ओह अच्छा अच्छा, तो हाँ हाँ, टाइम का जो प्रेशर था, या तो हाँ, मैंने इनकी किताब छपवाई है अभी रिसेंटली। जी, तो मैं अच्छा। कोशिश करती हूँ कि I would like to, I'm sure I would like to read that book. आई विल सेंड इट टू यू। Okay, थैंक okay, यू thank सो you. मच मंगलेश So जी, thank you, बड़ा Sukrita ji, yeah, for अच्छा such an enlightening conversation आई and थिंक the सो। poems also. आई Okay, एंजॉय thank you. टॉकिंग टू यू। Thank you, thank you. थैंक यू वेरी मच, Okay. Thank बोथ you. मानसी, Bye bye. अश्विनी, एवरीवन। Yeah. I'm much thankful to किताब खाना, Mansi Ashwini Kitab Khana. I हाँ, think Kitab Khana is a beautiful place. I absolutely I I wonderful. keep dreaming. I keep dreaming of going there. Yes.
And So, this is a very big task, organizing this kind of a poetry event every yeah, day. yeah, 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 Thank you. yeah. Hats off to you. It's Hats a off to biggest you. step against the contemporary gloom. Yeah, So, absolutely. yeah, Thank you. yeah. I'm putting this to an end now. Okay. Yeah. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank Thank you. you.